one of you. Sorry, good afternoon, rather, and good morning because it's after a long time we see each other. So that way it's good morning to you all. Nice to join back again for the classes, and I hope you are also with a positive enthusiasm. Okay, so today we are going to deal here with our third chapter, that is coordinate drawing. It's a totally a new concept for you. Okay, one of the scoring questions which comes in your class 9 and class 10, but I want you to focus and learn the concept today. I know it's very easy. You guys, you might think that's very easy concept, we can do it very easily. But there are children who are not able to understand the basics of it. For this time when we, when we did the board paper checking, I realized that there were so many mistakes done by the student. They didn't understand the basic concept of this chapter, and that's why for 10th standard also they use the marks. Because for a gap, it considers a 3 to 4 marks question in board exam also, and even in your class 9, you will be getting surely one question for this time. So pay attention and understand the concept. Okay, for your class 9th as well as for class 10th. Again, from my side, there is no range issues. So for me, it's quite clear and the voice is audible for everyone. If you will have some issues with the internet, then you might have voice sound. Okay, from my side, it's not at all any issues. Okay, so let's begin with it. Okay, mainly when we talk about coordinate geometry, we talk about a graph paper. That's why I told you yesterday, to arrange the graph paper as soon as possible. Okay, now understand the concept, please. Okay, what does it say? When we say now for your class 7, 8, you have been doing it. That is representing a number on the number line. Remember that? Representing a number on the number line. Okay, so you used to do it even the rational numbers on the number line, remember? So that is with a two-dimensional concept. That is a single line, only a line. That is called 2D figure. Okay, whereas here we are going to deal with, sorry, with the one dimension, here we are going to deal with a two-dimensional figure. I'm sorry, here number line is one dimension where we describe it as a point. Okay, whereas here when we talk about coordinate geometry, that is we talk about x-axis as well as the y-axis. That is this horizontal project in your class 8. So mainly we are going to do here this horizontal line. Please remember this horizontal line, we take it as x-axis, okay, and this vertical line of perpendicular to it, we take it as y-axis, and we show it with the arrow sign. And you know the reason why do we show with the arrow sign? Because it could be extended infinitely on all this vertically as well as horizontally. So we show it with the arrowheads. I hope that message is clear to you. Children, please pay attention to it and try to recollect this, try to understand the concept and, keep it in mind and go on recollecting again and again because these are the basics. Like you learn your alphabets A, B, C, D, right? And how many times, so many times you learn the concept, repeatedly you learn the concept. So once you know it, you easily understood how to do it. Okay, so same way, this is a very new concept for you. So if the concepts are clear, it would be very easy for you to go further with the high level questions. Okay, so this is x-axis and y-axis, and where they meet each other, that is 0, which we call it as origin. What do we call it as? Origin. ठीक है, जहाँ पे 0 है उसको हम कहेंगे origin. ठीक है, तो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आज, सो प्लीज पे अटेंशन टू इट. आप जो टर्मिनोलॉजी जो मैं बताने जा रही हूँ, इफ यू विश टू, you can write it down. Again, children, it is no problem from my side. My internet is very clear. I could see myself. I could see it in my other mobile also. Some problem with your side, so bear with it and watch it later. Okay, try to be attentive. हो गया ठीक तो आप देख सकते हो, but I will watch it later. Okay, so again coming back to the topic, a horizontal x-axis, we always put arrow on both the side and we mark it here with capital X and here we mark it with capital
y, vertical one, that is x and y axis. Okay, and as we go, zero के बाद क्या होता है? So naturally it is one. And now this you will be doing it on the graph paper. So you have the mark, which is made up of green lines generally. So green lines, and they have very light like this way, the vision. ऐसे तो ये जीरो यहाँ पे है. ओके, फिर उसके बाद आपकी आती है 1 2 3 4 एंड देन थोड़ी डार्क लाइन आती है कंपैरेटिवली एंड देन इट गोज विद कंप्लीट 1 सेंटीमीटर. पूरे 1 बाय 1 के उस पे होते हैं. 1 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करोगे 10 इक्वल पार्ट, मतलब कि जाता है मिलीमीटर में. तो एक एक मिलीमीटर के उसमें 10 वो डिवीजन होते हैं एंड द कंप्लीट होल इट इज नोन एज 1. ओके, तो जब आप ग्राफ पे करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसके बाद एक यूनिट कहाँ होगा. तो 1, इसके बाद होगा 2 3 4 5, क्योंकि जीरो के बाद आपको सीखा हुआ है जीरो के बाद क्या आता है. 1 2 3 4 5, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो. All positive integers are denoted. That is all positive rational numbers. अब मैं आगे जाऊं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स या पॉजिटिव रियल नंबर्स हम डिनोट करेंगे इस तरह से. क्लियर? On you go on the, as you go on the left hand side of zero, what do you get? Negative numbers. Okay, so we represent this with say यहाँ पे हम integers ही बताएंगे. Okay, -1, -2, -3, -4, -5 and so on. Fine. इसी तरीके से we have to go up with the positive and down we have to go to the negative. तो इस तरीके से यहाँ होगा ये 1 2 3 4 5 and same way the negative will go down. So यहाँ पे जीरो के बाद फर्स्ट आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, so on. समझ में आया? इतना बेसिक कि आपका ग्राफ पेपर पे जब आप पॉइंट प्लॉटिंग के लिए आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे कार्टेशियन ज्योमेट्री जिस तरीके से हमें ड्रॉ करना, तो पहले एक्स एक्सेस करना है, वाई एक्सेस वर्टिकल होगा और किस तरीके से दिखाना है. आई होप दिस इज क्लियर. वेरी सिंपल थिंग है, कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है. बट हाँ, थोड़ा सा ध्यान नहीं होगा तो चिल्ड्रन डू इट लाइक दिस, -1, -2, -3, -4 ऐसे भी करते हैं. Okay, so this is very basic thing. Please remember it. Those who are little fight with maths, you have to be very careful and try to avoid errors and try to score full marks for this because it is one of the scoring chapter which you get. और दूसरी चीज, हाँ, बिफोर स्टार्टिंग फर्दर आई वुड जस्ट टेल यू वन थिंग. यदि आप इसको टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आप कहोगे कि मैम इसमें कुछ है ही नहीं सीखने जैसा, बहुत छोटा सा चैप्टर है. बट इन बोर्ड एग्जाम्स, एज यू नो, क्वेश्चंस काफी एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्ट. तो आपका जो नॉलेज है वो उसमें चेक होता है एंड इट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. तो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आपको ऐसे लगेगा कि ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ हमने सीखा ही नहीं, बट इट्स बेसिकली एप्लीकेशन of coordinate with geometry. Okay, so application based questions are up with such questions as I mainly go for it. Fine. तो एक चीज आपको ये समझनी है that this is the way. आप इससे पॉइंट प्लॉटिंग कैसे करना है, इसका मेन यूज क्या है, ये व्हाट इज अ प्लेसमेंट, इसका प्रैक्टिकल यूज सबसे ज्यादा इस चीज का कहाँ कर रहे हो. यू रिमेंबर योर ज्योग्राफिक लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. ओके, क्या है, आपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस बना दी और आपके ग्लोब पे क्यों बनानी है ये, ऐसे कोई लाइंस है नहीं एक्चुअली, बट वी हैव डन इट फॉर आवर कन्वीनियंस. क्यों? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन, दैट इज द लोकेशन ऑफ एरिया, पर्टिकुलर एरिया ऑन द ग्लोब. ओके, तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो उस हिसाब से जहां डिवीजन में देखेंगे सो यू विल कम टू लोकेट ऑन दिस पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड और ऑन दैट इंटरसेक्शन और बिटवीन दीस टू लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड this particular location is safe. So that is what so here no, it is not Pudar. I'm really sorry, it got connected. No, this is not for Pudar, this is my lesson, maths lesson is okay. So I'm sorry children. So here what I was saying is, so what's the basic use of this coordinate geometry? That is for the coordination, rather
You can say with the help of coordinates we can find out the location. This is one of the simple concept. और जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, so if I ask you the location of one student, right, we are still standing outside and I say, okay, suppose this X student, where he would be sitting, let me know. So you will tell me the position as per the row and the columns, right? So that is what we are not, nothing but we are talking about the location or the position of the student. So we are talking about its coordinate. Okay. तो जिस तरीके से कोऑर्डिनेट बताए जाते हैं वो कैसे हमेशा बताए जाते हैं, तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पहले तो लिखेंगे ऐसे, मतलब कि आपको जब ब्रैकेट में एक्स वाई दिया हुआ है तो आप कहेंगे एक्स वाई, ओके, यानी कि पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा होगा वाई कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होते हैं, लेट्स सी दैट। Okay, so when we talk about x and y coordinate, that is the position with respect to x-axis and with respect to y-axis. So let's see how. So if I say, suppose I take the example 2, 3. Okay, 2, 3. तो आपका जो x coordinate है वो जा रहा है से यहाँ पे 2 पे. Okay, so somewhere over here, somewhere on this line, ये सारा पूरा represent कर रहा है 2, isn't it? यहाँ पे x coordinate आपका 2 represent करना है of all these. Okay, पर हमें कौन सा चाहिए y coordinate 3, so let's go y coordinate 3. So this is the point. If you see this whole line, you know, it will represent 3. तो इसमें जो ये वाला point है हमारा, okay, जो 2, okay, so this shows this is the location of the point 2, 3. I hope I'm clear with this. Okay, this is called basic आपका coordinate geometry का introduction है, जिसमें आपको किस तरीके से coordinate locate करने हैं ग्राफ पे, that we have to check it. So this is 2, 3. I hope I'm very clear with it. Let's see one more point. Okay, if I say 3, 2. See, generally it is confusing for you. So you don't take it that 2, 3 and 3, 2 is same. Here it's totally different. The position is totally different. However, 3, 2, that is x coordinate is 3 and y coordinate is 2. So okay, x coordinate is 3, तो x कहाँ पे है 3, यहाँ पे है, okay, and y coordinate is 2, यहाँ पे है। तो आप देखेंगे if I draw it properly, and ये distance जो हमेशा होगा इसको मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूंगी, एक चीज और भी ध्यान रखिए। देखिए मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ, तो सिर्फ ड्राइंग पे फोकस मतलब ये भी जरूरी है, बट ड्राइंग के फोकस के साथ साथ यू हैव टू लर्न द टर्मिनोलॉजी व्हिच आई विल डिस्कसिंग विद यू। ओके, तो आप देखोगे कि जब हम x = 3 बताते हैं तो x = 3 क्या बताते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब y एक्सिस ये 0 से हम शुरू करेंगे, कहीं से भी यहाँ से शुरू, सो इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू y एक्सिस। और यहाँ से जब मैं 2 को डिस्क्राइब करती हूँ तो ये 2 क्या है, तो इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू x एक्सिस। मतलब कि यदि x एक्सिस का परपेंडिकुलर 2 यूनिट डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट 2 कहीं पे भी मिल सकता है। See, bit ambiguous, bit confusing, but please pay attention. मैं फिर से ये बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देके सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जब मैं x कोऑर्डिनेट कहती हूँ तो एक्चुअली x कोऑर्डिनेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, x कोऑर्डिनेट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ अ, either I could say distance of a perpendicular टू y एक्सिस। ये y एक्सिस है, इस पे हमने परपेंडिकुलर बनाया 3 का, तो ये मिल गया हमें 3 वाला पॉइंट। कहीं पर भी आप परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स का बनाओगे तो ये पूरी लाइन जो आपको 3 पे मिलेगी। एंड उसी तरीके से व्हाट इज दिस, अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओगे वो आपका हमेशा y कोऑर्डिनेट होगा। ओके, तो x is always described in the form of y axis and y is always described in the form of x axis। थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी लैंग्वेज और थोड़ा सा आपकी रीडिंग स्किल पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब क्या होता है, जब क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में होता है, इट इज 3, 2, 2, 3 में भी यू विल अंडरस्टैंड, यू विल प्लॉट इट, बट कभी-कभी ये डिस्क्रिप्टिव मोड में आता है, सो मेनली उसके ऊपर आपको फोकस करना है। सो लेट्स गो फॉर टर्मिनोलॉजी नाउ। जैसे आपने 2 और 3 को लोकेट करना आपको समझ में आ गया, फाइन, होगा कि दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं कोई जाती हूँ, सपोज आई गो फॉर दिस पॉइंट, ओके ओके, तो इसका x कोऑर्डिनेट कहां पे जा रहा है, यू कुड सी व्हाट इज इट, कुड यू एनीवन सी, प्लीज कैन यू राइट इट डाउन, कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द पॉइंट ऑफ दिस, what are the coordinates of this point, anyone could you tell me?
Okay, I want the coordinates for this point. Similarly, I want the coordinates for this point. Okay, and here the coordinates for suppose this point. Okay, yes, many of you are correct. It is -4 3 तो x के ऊपर साथ जाएंगे तो -4 और यहाँ पे ये किसको मिल रहा है 3 so the points are -4 comma 3. I hope this is clear to everyone. Very good, many of you gave correct answer. Okay, अब यहाँ पे आएंगे. It is -5 पे कॉल हो रहा है और यहाँ पे ये कहाँ पे जा रहा है -6 के साथ. Very good, more many of you correct to answer me. It is -5 comma -6. Yes, and the last one is correct. यहाँ पे पहले हमें x को देखना है, ठीक है. जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि हाँ ये तो -3 है, ऐसा नहीं देखना. पहले हमेशा हमें x एक्सिस को देखना है. तो ये x एक्सिस से कहाँ फॉल हो रहा है, तो ये कहाँ कनेक्ट कर रहा है ज्यादा. ऐसे देखिए क्या, ऐसे देखिए किसी भी तरीके से. तो ये कहाँ पे हो रहा है 3 पे, and this is -3. Okay, so this is 3 comma -3. So I hope you got the points location. ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिले वो दोनों पॉजिटिव है. ओके, यानी कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है. यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव में आएगा और हमारा वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में आएगा. ओके, यहाँ पे हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स हमेशा नेगेटिव होंगे और यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. ठीक है. ओके, तो ये जो चार्ट आपने देखा कि ये पूरा जो ग्राफ पेज है मेरा, बिकॉज ऑफ दिस ड्राइंग इट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और इस 4 पार्ट को, हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट. व्हाट विल बी कॉल्ड इट एज क्वाड्रेंट. क्वाड मींस क्वाड, क्वाड का मतलब होता है 4. फाइन, तो याद रखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट, एंड इट इज डिनोटेड विद रोमन लेटर्स. थोड़ा सा ये सारा रख कर देते हैं सो दैट यू कैन इजीली सी. आई डोंट वांट टू वेस्ट मच ऑफ टाइम इन ड्राइंग, इसलिए मैं मेन वाला कट नहीं कर रही हूँ. ओके, सो यहाँ पे दोनों नेगेटिव और जो क्वाड्रेंट है वो हम कैसे दिखाएंगे, विद रोमन. तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर इसी के नीचे ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो मैंने अभी आपको लोकेशन बताया कैसे पॉइंट को लोकेट करना, दैट इज कोऑर्डिनेट्स उसके लिखने हैं. सेकंड चीज ओरिजिन आपको पता चल गया और थर्ड चीज आपको क्वाड्रेंट्स पता चल गए. कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट. I could see there are many students who are joining very late, so I request you that you can go through the video, you know, for your understanding. It's not for attendance. आप ये मेरे लिए नहीं कर रहे हो, ये आप खुद के लिए कर रहे हो. तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और ये कॉन्सेप्ट प्लीज समझ लेना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए. राइट, तो ये 4 क्वाड्रेंट है जिसमें लोकेशन आपको पता चला. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा कोऑर्डिनेट्स दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एक्स पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब आपको देख के पता चल जाना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट आपके नेगेटिव होंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव. Am I clear with these 3 points? I mean, these 3 which I said: draw, location, and quadrant. इतना समझ में आया? अब एक बेसिक है. Let's go for origin. ठीक है, ये वाला 0. ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप इसको एक्स एक्सिस पे कैसे डिफाइन करोगे, ये 0 का लोकेशन दिखा रहा है. आप वाई एक्सिस पे भी जाओगे तो ये किसका लोकेशन दिखा रहा है, 0 पॉइंट का दिखा रहा है. तो आपके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमेशा, तो प्लीज याद रखिएगा आपके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, 0,0. और बार ये बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ जाता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन. सो दिस इज 0,0. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ वी गो विद वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जैसे अभी ऐसे मैंने यहाँ पे काफी एक्स कोऑर्डिनेट दिए हैं, वाई कोऑर्डिनेट दिए, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर नेम है, नेमिंग दिया हुआ है. एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या नाम है और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या नाम है. सो लेट्स सी दैट.
ओके, तो दो टर्म्स है आपके पास, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो उनके लिए है वर्ड एब्सिसा एंड दूसरा वर्ड है आपका कोऑर्डिनेट। ओके, एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट। तो जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या कहेंगे, एब्सिसा। तो यदि आपको ऐसे कहा जाए द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज 3, इसका मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। ओके, एंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब दोनों आगे, कोऑर्डिनेट का मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है। समझ में आया मैंने क्या कहा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट ओ आर डी INATE ऑर्डिनेट इज अ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी चीज जो मैंने दिखाई डेफिनेशन है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको कैसे बताया जा सकता है, सिंपली लिखकर, जैसे 2,3 या -7,3 या 3,-5। ओके, इस तरीके से तो भी आपको समझ में आता है। यदि मैं आपसे कहती हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ओके थोड़ा सा ध्यान से सुनना, perpendicular distance of a point from y-axis is 6. Perpendicular distance of a point from y-axis is 6. तो आपका 6 क्या है, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट? Would you answer it? Perpendicular distance from y-axis is 6. तो इसका मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट 6 है या y कोऑर्डिनेट 6 है? Okay, correct. I think 3 students have given correct answer. Very good. Yes, the x coordinate is 6. That is x का वैल्यू आपका यहाँ पे 6 है। तो याद रहा, आप तीन तरीके से पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हो, एक तो बाय लिस्टिंग, दूसरा इस तरीके से that the perpendicular distance from y-axis or perpendicular distance from x-axis. Fine, it's correct. Most of you are correct. Yeah, please. Monica, was it Monica? Not x quadrant. It is x coordinate. Okay, Monica, please correct yourself. ओके, और जो तीसरी मेथड जो मैंने कहा एक्सिसाइज 6, मतलब कि क्या हुआ कि आपका जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 6 है। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। इट इज व्हाट, तो वाई कोऑर्डिनेट जो भी है, सपोज से वाई कोऑर्डिनेट इज 3, ओके, एक्सिसाइज 6 एंड कोऑर्डिनेट इज 3, तो आपका पॉइंट क्या बन गया, 6,3। एक्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस एवरीवन, ठीक है। तो ये पॉइंट की लोकेशन आपको सबको पता चल गई, किस तरीके से आपको पॉइंट को लोकेट करना है। यस, सी आपको इसमें ग्राफ पेज मस्ट है, सो प्लीज चेक इट दैट यू ट्राई टू गेट द ग्राफ पेपर, प्रिंटर है तो प्रिंट ले लीजिए या किसी भी तरीके से कर लीजिए। फाइन, तो फिर से मैं बता रही हूँ, एक तो हमने देखा एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस इज वर्टिकल, where they meet each other, that point is called as origin, जिसके कोऑर्डिनेट होता है 0,0। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने नोटिस किया होगा, बट स्टिल which is wrong. What is wrong in it? Okay, when I say coordinate of a point is 2,3, we use round bracket. हमारे लिए ब्रैकेट यूज करना बहुत आम बात है, तो हमारे लिए मतलब कि हम सोचते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट हो या राउंड ब्रैकेट हो क्या फर्क पड़ता है, बट नो, मैथ्स हैज प्रॉपर्ली डिफाइंड ब्रैकेट सिस्टम। उसमें जब आपको कर्ली ब्रैकेट कब यूज करने हैं, राउंड ब्रैकेट कब यूज करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज करने हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर वे फॉर इट। सिंस जब हम कोई भी चीज को स्क्वायर के अंदर डालते हैं, so that means I can interchange the value, doesn't make any difference. तो इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होता। दैट मींस वी डोंट यूज स्क्वायर ब्रैकेट एट ऑल, वी यूज राउंड ब्रैकेट एवरी डे। प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक। इस तरीके से आपको ये चीजें, आपको बहुत छोटी छोटी चीजें, पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओके, कि हमें जो हमारे लिए कॉमन है कि क्या फर्क पड़ता है, हम तो कभी भी कोई भी ब्रैकेट लगा देते हैं while solving algebra or doing some calculation, but it has specific meaning. Every bracket then has specific style. तो वहाँ पे coordinate geometry में specifically round bracket का use करना है आपको। That means that the positions are fixed. x2 है, y3 है, और मैं यदि इसको 3, 2 लिख देती हूँ
So they are not equal. They are not same. They are totally different. I hope that is clear to you. Okay, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है that x coordinate is to y is 3. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि axis is to coordinate is 3. Right? एंड आपको पता है कि यहाँ पे पूरा डिफरेंट मीनिंग होता है और इसका लोकेशन भी अलग होता है. सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट. ऐसे एकदम से मतलब क्यों मतलब जैसे कि लिख दिया अरे ध्यान नहीं गया, ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड बच्चा ये जो टाइम है ना इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ये आपकी टेस्टिंग ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम क्लासरूम में रहते हैं तो लाइक वी टॉक टू ईच अदर एंड मैं आपकी जैसे नोटबुक में देखती हूँ तो आप बता देते हो ये गलत लिखा है, दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग. ओके, बट यहाँ पे हम काफी एक दूसरे से दूर हैं. सो इट इज मोर टू टू डेवलप योर ऑब्जर्वेशन स्किल. आपको बहुत अच्छे से ये सीख सकते हो चाहो तो कि आपका ऑब्जर्वेशन, आपको हर एक चीज पर आपका ध्यान होना चाहिए कि व्हाट आई एम राइटिंग किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है. इट मे बी इट कैन बी एनी अदर क्लास. ओके, सो प्लीज बी वेरी क्लियर. अगेन आदित्य हैज सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मैंने ये बताया है व्हेन आई से 6,3 और यदि मुझे इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कहना है तो हमेशा x कोऑर्डिनेट y एक्सिस के रेफरेंस से कहा जाता है और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस के रेफरेंस से कहा जाता है. आदित्य जस्ट रिमेंबर दैट मच, दैट इज क्लियर. सो व्हेन आई से x कोऑर्डिनेट इज 6, दैट इज perpendicular distance from y axis is 6, okay, and y coordinate is 3, that means perpendicular distance from x axis क्योंकि नीचे फॉलो है ना perpendicular. Okay, so it is 3, 6,3. Fine, I hope that is clear to all of you. ये मुझे सेशन बहुत ही छोटा रखना था बट स्टिल आई थिंक बाय रिपीटेशन इट वेंट फॉर 20 मोर देन 30 मिनट्स इट कुड गो. ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं. आई really request you to pay attention because बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये. ओके, बट मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, इसलिए शायद मैं बार बार इस चीजों को आप लोगों को लग रहा होगा रिपीटेशन हो रहा है, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी परफेक्टली. तो वो क्या है? ओके, थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया उसमें. थोड़ा सा मैं दूर कर रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड मुझे जो पॉइंट है बताना है. ओके, मैं छोटे ही पॉइंट्स ले रही हूँ. मुझे मतलब मेन फोकस ये है कि आपको क्लैरिटी से दिखाई देता है यहाँ पे. ओके, अब जो पॉइंट है ये विद रिस्पेक्ट टू जीरो में आते हैं. जैसे कि मैं ले रही हूँ पॉइंट, सपोज ये ओके, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट नोटिस करिए, यहाँ पे ये वाला पॉइंट नोटिस करिए, यहाँ पे ये वाला पॉइंट नोटिस करिए. आई डोंट वांट यू टू गिव मी द आंसर, प्लीज डोंट टाइप इट. I want you to understand because there are many who is learning this very well. Okay, so please, बहुत सारे हैं जिनको learn करना बाकी है. There are some, I know you have done it, so please pay attention over here. ये हमारा x axis है और आपके points देखोगे तो सारे axis के ऊपर है. अभी तक जो हमने points के लिए मैंने मना किया है आंसर के लिए, so please I don't want you to write answer. Please follow the instructions. तो आप देखोगे तो मैंने सारे points बनाए हैं axis के ऊपर, या तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है. तो इसका कैसे लोकेशन लिखा जाता है, दैट इज इसके कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से लिखेंगे. तो ये एक्स जो पॉइंट एक्सिस पे होता है, मतलब जो एक्सिस पे जो पॉइंट होता है तो वो वाला कोऑर्डिनेट नंबर होगा और उसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा. समझ में आया? मतलब कि पॉइंट यदि एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉइंट यदि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और यदि पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा. आपको समझ में आ रहा है? जो भी रिस्पेक्टिव एक्सिस पे पॉइंट होगा उसका दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा. सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं तो ये कौन से एक्सिस के ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर. इसका मतलब ये हुआ कि इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा. फाइन, तो x का क्या पॉइंट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 2 है. सो दिस इज 2,0. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब इस पॉइंट पे जाते हैं तो इसका ये किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है. और जब ये y एक्सिस पे होता है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 लिखना है आपको.
Okay, so this is 0, 3. I hope that is clear to all of you. Okay, बहुत सारे बच्चे इसमें confuse हो जाते हैं, they make mistake. So please be very clear to it. यहाँ पे जाएंगे फिर से x axis पे पॉइंट है तो कौन सा वाला 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, so this is -1, 0. और उसी तरीके से मैं यहाँ पे आती हूँ तो ये y axis पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y will be -3. I hope it is clear to you. So if I say a point, so please listen to my question. So I think I will clear others' doubt also. I'll say a point, okay, or write the coordinates of a point which lies on a x-axis and its abscissa is 5. Write the coordinates of a point which lies on x-axis with abscissa 5. So what would be the point? Could you tell me? Shall I repeat the question? Write the coordinates of a point which lies on x-axis having abscissa 5. What is abscissa? X coordinate. तो आपका x coordinate क्या है? y है. Okay? और y coordinate क्या होगा? Definitely 0 होगा क्योंकि ये point x-axis है. समझ में आ रहा है ये सबको? I hope this is clear to all of you. Yes. Okay. So this is the main thing I wanted you to understand. ठीक है? आप एक ग्राफ पेपर, यदि आपके पास फिलहाल ग्राफ पेपर नहीं भी है तो नोटबुक में ही प्रॉपर्ली 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस लेके यू ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस एंड फ्यू पॉइंट्स मार्क करिए. एंड मैंने जैसे बताया वैसे आपको राउंड ब्रैकेट हमेशा यूज करना, विदाउट ब्रैकेट. जैसे अभी आप आंसर कर रहे हैं ठीक है, पर जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं तो आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर देने हैं जवाब. आप जब इसको लोकेट करेंगे तो डोंट गो विद सच. सब जैसे कि मैं बताता हूँ कि मुझे 0,2 दिखाना है, so I will not do like this. Please don't do it, okay? Because वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है. तो जब आप ग्राफ पेपर यूज करेंगे, you're not going to use marker, you're going to use pencil or sharpened pencil. तो जब आप मार्क करते हो तो you will just put a point like this and encircle it, okay? और सिर्फ points है तो you could name it as say A, B, C, D, something like that, okay? So this is the way to locate it, okay? Simple से आप एक dot बनाएंगे, okay? और उसको encircle कर देंगे. So this is the way to show the point. I hope I'm very clear to it. Because आपको एग्जाम में जैसे हाईलाइट करना है कि आपको डर लगे कि पेंसिल से दिखेगा नहीं, तो उसको आपको ऐसे घुमाते नहीं जाना है, आपको इस तरीके से उसको एनसर्कल कर देना है. I hope this is clear to all of you. A very simple concept. I hope you have understood it well. ठीक है. और एक चीज आपको बता दूं कि जब आप लाइक हम देते हैं, इसको लाइकिंग देते हैं, तो उसको दोबारा क्लिक करते हैं तो वो अनलाइक हो जाता है. So remember that you really like whenever you give the thumbs up sign वहाँ पे क्लिक करिए. Okay, so we end up the session here. इसका बहुत ही बेसिक्स मैं आपको नोट्स भेजूंगी, आप बुक भी खोलोगे तो आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाएगा. But again, as I said, very important concept. Okay, we will continue further on Thursday, and I request that you will go for attendance and please write the correct timings. Okay, and if you repeat it also, please fill up the attendance again. It's just for my knowledge. I just want to see. Okay, just write down the repeat and then please write down your timings. Okay, thank you children. I'm putting it the attendance here also as well as on your WhatsApp group also. Fine, thank you. Just one sec. So this is the attendance. Okay, so kindly connect on this. Okay, go to this and please give the attendance for yourself.